Yes. A very good afternoon to all the delegates present today. Myself, Dr. Sangeeta Pillai from Bharuch, Gujarat. I welcome you all to the 127th lecture of Guruji Ke Saath Guruvar 2.0 that we started on 10th April 2025 under the guidance of Guruji Dr. Liaquat Namole sir. I would like to share a few words about PHF, which is Promisilone Homeopathic Forum, that was founded by Dr. Liaquat Namole sir with the vision to educate homeopaths and to convert general practitioners back into homeopaths. And he has been successful in transforming more than 2,000 GPs towards homeopathy. We events regularly to so that we can reach out to maximum homeopaths who are not ready to practice homeopathy due to lack of proper guidance. Ignited Minds by PHF is the pioneer group for free learning of homeopathy, first started on WhatsApp and now on Telegram. Now about 3,000 doctors are learning daily on our Telegram group. Previously, we have completed three webinar series of Guruji Ke Saath Guruvar, original one, of 100 lectures on Zoom, and the recordings are available on our YouTube channel, Ignited Minds by PHF. We have added a new sub-series to these lectures named What Women Want, where we explore women's heart, emotions, and needs to be able to heal them in our practice. I feel honored to welcome and introduce today's speaker, Dr. Mansi Patil. We all know her. We see her name every day in our groups. She has completed DHMS from Srimati Venuta Yeswantrao Chavan Homeopathic Medical College, Kolhapur in 2003. Having clinical experience of about 20 years, she has been practicing homeopathy since last 9 to 10 years. Dr. Mansi is ever learning and ever growing, has good command of rubrics, and is famous for her daily sincere sharing of rubrics on our Telegram, WhatsApp, and Facebook groups with a horde of followers. Please, ma'am, take over our screens and teach us. Thank you. Thank you, Sangeeta, for such a warm welcome. Sir, आ गए? Yes. Yes. क्या बोल रहे बच्चन स्टार्टिंग ना यू स्टार्टेड Okay. स्टार्ट करो मैं आहे आई एम देयर ठीक है Yes. अभी अभी आप बैटिंग करो फिर हम आएंगे Okay. So, friends, good afternoon, and thank you for joining in this afternoon session. आफ्टरनून का सेशन थोड़ा ये होता है, लंच के बाद का सेशन जो होता है वो थोड़ा सा स्लीपी फील कराता है, लेकिन फिर भी आप लोग ज्वाइन हुए हैं, सो थैंक यू वेरी मच. Thank you, Sangeeta, for giving such a warm welcome. Thank you, my team, and thank you, Liaquat sir, my mentor, Guruji, or friend, guide, whatever adjective I can add to sir. So, thank you for creating such a wonderful platform and encouraging us to share whatever little knowledge we have, so that all the people who are not getting the proper knowledge of homeopathy, so we are trying to share whatever we are getting in our डे टू डे प्रैक्टिस. सो सर का मोटो यही रहता है कि जो भी हमको मिला, अगर आज कुछ भी नया रूब्रिक मिला है, कुछ भी नया जेस्चर मिला है, या फिर कुछ वर्जन मिला है जो कि हमको डेली प्रैक्टिस में या फिर किसी भी केस में हमको अगर वो हेल्प करने वाला है, तो सर वो डेफिनेटली मतलब एकदम शेयर कर देते हैं. सो हम भी वही सर के इस पे चलने की राह पे चलने की कोशिश कर रहे हैं. सो स्टार्टिंग विद द सेशन व्हाट वुमेन वांट की सीरीज हमने अभी शुरू की है. तो इसमें वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द वुमेन्स माइंड, और वी कैन से वुमेन्स इमोशन. Actually, it is a very difficult topic to explore, but still, we are trying to find out the emotions and what a woman want in her life. So जब ये टॉपिक मतलब हम लोग सोच रहे थे, तो वी वर लिटिल स्केप्टिकल कि क्या होगा, मतलब कैसे हमको इसको इंटरप्रेट करना है और कैसे हम इसको शेयर करने वाले हैं. लेकिन जब भी ये सर ने हमको बताया, तो हम लोग वो जो केसेस हमारे सॉल्व हुए हैं पहले,
और अभी भी जो हम लोग नए केसेस ले रहे हैं तो उसमें भी ये हेल्प हो रहा है, क्योंकि इमोशन का मतलब होता है इमोशन से ही सब कुछ जुड़ा है। जैसे डॉक्टर हनीमन कहते हैं कि माइंड एंड बॉडी कनेक्शन होता है। तो जो माइंड सोचेगा वही बॉडी पे आता है। मतलब जैसे साइकोडायनामिक्स है या फिर मेटाफिजिक्स बोल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ वो जो भी बीमारी है वो पहले माइंड पे स्ट्राइक होती है और उसके बाद में वो बॉडी पे उसके सिम्टम्स थ्रू हम उसको डिसीज का नाम लेके फिर हम उसको देखते हैं या फिर एनालाइज करते हैं और फिर हम रेमेडी तक पहुंचते हैं। तो ये सब प्रोसेस है। सो आई विल बी शेयरिंग वन केस। बहुत ही सिंपल केस है, ऐसा कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्रॉनिक डिसीज है तो थोड़ा सा जैसे हम इमोशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डीपली उसको सोच के फिर हमको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द केस। आई होप माय audio is clear. Hello. Yes, ma'am. Okay. So the case is, ये लेडी एक लेडी का केस है। 53 इयर्स एज है उनकी और उनको अर्थराइटिस है, रुमेटॉइड अर्थराइटिस। मतलब 20-22 साल से अर्थराइटिस है। फिर बीच में उनको एक एक थोड़ा सा एपिसोड आया था कि उनके लेग्स में ना लाइक पैरालिसिस, मतलब सेंसेशन ही चला गया था लेग्स में। उसके बाद में फिर उनको क्या हुआ, अभी उनको कंप्लेंट जो है वो अर्थराइटिस की भी है, लेग्स में पेन है। और दूसरा चीज है कि उनके हाथ पे, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट फुट पे थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन कुछ हुआ है। तो 5-6 महीने हुए। उनकी सिस्टर जो है वो डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इनके पास जाओ। तो उनके पहले भी उनके लड़के को भी मैंने ट्रीटमेंट दी थी। तो वो बोले कि आप उनके पास जाओ और अ, वही कंटिन्यू आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करो। तो इसलिए वो लोग मेरे पास आए थे। मैंने पूछा उनको कि ये कब से हुआ है आपको। तो वो बोले कि 5-6 महीने से ये स्किन पे कंप्लेंट हुआ, लेग पे हुआ है। और वहां पे स्वेलिंग भी है। मतलब एक ही लेग में, लेफ्ट लेग में थोड़ी सी स्वेलिंग बढ़ गई है। तो अर्थराइटिस इतने साल से है तो वो डेफिनेटली डिफॉर्मिटीज हो रखी है। उनके हाथ वगैरह पूरे ऐसे मतलब डिफॉर्म थे, हाथ भी और पैर भी। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला, मतलब हिस्ट्री में वो आएगा आगे, कि वो पूरा मतलब घर का काम पूरा कर लेती है। मेड है हेल्प के लिए, लेकिन खाना वगैरह बनाना या फिर जो भी घर का जो डोमेस्टिक जो रहता है, तो वो बोली कि वो मैं कर लेती हूँ अपने आप से। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, पेन होती है लेकिन फिर भी मैं कर लेती हूँ। ठीक है। और अभी जो उनकी मेन कंप्लेंट जो है वो लेग में, मतलब थाई में, लेफ्ट थाई में उनको पेन था। और जैसे अपना ये जो पेल्विस रहता है, बटक, तो वहां पे बहुत ज्यादा उनको पेन थी। तो वो उनका कंसर्न था कि ये पेन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से वो सो नहीं पा रही थी। तो और मैंने उनको पूछा कि क्या मतलब अभी दिक्कत क्या होती है, आपका मूड कैसा रहता है। जैसे हम हमेशा पूछते हैं ना बीमारी को लेके, कैसा है आपका, क्या सोच आती है मन में, क्या चलती है सोच। तो उन्होंने बोला कि सोच ऐसे कुछ नहीं चलती, ये स्किन का ही लगता है कि फैल जाएगा और ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या करूंगी। और फिर उन्होंने बोला कि लेकिन मुझे ये विश्वास है कि हो जाएगा वो। मतलब होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ही मेरा ठीक होगा, ऐसे उनको विश्वास है, ऐसे उन्होंने बोला। तो मैंने बोला कि ठीक है फिर। और वो जब बात कर रही थी ना, तो पूरा मतलब वो बता रही थी कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ऐसे ऐसे मुझे वो एक्सरसाइज पैरालिसिस के टाइम पे दिया था। तो वो मैं एक्सरसाइज करती थी, यहाँ पे मेरे पेन्स है, मतलब जहाँ जहाँ पेन्स था वो सब उन्होंने दिखाया करके। और स्किन का वो भी सब जो भी कंप्लेंट्स है वो सब उन्होंने मुझे दिखाया। तो और
एक चीज वो बोली कि वो डॉक्टर ने ना, मतलब जो आर्थराइटिस की उनकी जो ट्रीटमेंट चालू है, वहां पे उन्होंने बोला कि वो जो है डॉक्टर वो पेन किलर देते हैं। और लेकिन मैंने कोई पेन किलर नहीं लिया है, क्योंकि उससे वो ज्यादातर मैं वो टालना चाहती हूँ, तो मैं वो नहीं लेती हूँ पेन किलर। ठीक है। तो ये सब उन्होंने अभी का जो है प्रेजेंट कंप्लेंट्स जो है वो बताई। फिर जैसे सर हमेशा बोलते हैं कि अगर ये क्रॉनिक डिसीज है, मतलब 20-22 साल का है, तो क्रॉनिक ही हुआ। तो ऐसे केसेस में हम पास्ट हिस्ट्री में क्या पूछना चाहिए, तो सर हमेशा बोलते हैं कि वो चाइल्डहुड हिस्ट्री थोड़ी सी पूछनी चाहिए, कि उनका बचपन कैसे गुजरा, या फिर उनका मैटरनल लाइफ कैसा गया, फिर मतलब अभी कैसा है। तो वो सब मैंने उनको पूछा कि कैसे था आपका चाइल्डहुड, कैसे गया। तो उन्होंने बोला कि चाइल्डहुड तो इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि फादर एक्सपायर हुए थे। और हम 3 बच्चे थे, भाई एक और 2 बहनें। और फिर मम्मी थी। फिर जैसे तैसे वो कुछ ना कुछ ऐसे करके उनका बचपन निकल गया। फिर उन्होंने जब एजुकेशन हुआ, तब उन्होंने कुछ ना कुछ, तीनों बच्चों ने अपना अपना काम स्टार्ट किया। और ऐसे करके उनकी लाइफ चल रही थी। फिर भाई ने उनके ये दोनों बहनों की शादी वगैरह कराई। ठीक है। तो शादी के बाद भी क्या हुआ बीच में, उनका पहले तो 2 अबॉर्शन हुए। उसके बाद में तीसरी बार ये बच्ची हुई। तो जो बच्ची अभी उनके साथ आई थी, वो 21-22 साल की है बच्ची। तो पहले 2 अबॉर्शन हुए, तो वो बोले कि वो अबॉर्शन के बाद ही मुझे कुछ कुछ सेंसेशन होने लगा, कि शायद मेरी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। तो उसकी वजह से मुझे समझ में आ रहा था कि वहां पे कुछ ना कुछ तो मुझे प्रॉब्लम बॉडी में होने वाला है, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर शादी के बाद भी, जब जैसे मैंने बोला कि मैरिज में कुछ, उसके बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कुछ थोड़ी बहुत उनकी आई थी। तो उन्होंने, वो बोली कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं काम में रहूं, तो कुछ ना कुछ मैं करती थी काम। पहले मैंने एलआईसी के, बैंक का जो एलआईसी का ये रहता है, एसबीआई का, वो किया। फिर घर पे अपने साड़ी का बिजनेस किया। ऐसे मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ब्लाउज वगैरह सिलती हूँ, या ऐसे कुछ ना कुछ मेरा बिजनेस चलता रहता है घर पे ही रह के। तो मैंने बोला आपकी पढ़ाई कितनी हुई, तो वो बोले कि ग्रेजुएट हूँ मैं, बीए किया था। और एक बात मुझे अजीब लगती है कि मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, स्कूल में मैं एथलेटिक खेलती थी। और थ्रोइंग इवेंट्स में मेरा ज़्यादा ये था, और मेरी रुचि थी, और मैं वो कॉलेज तक मैंने वो कंटिन्यू करा था। और मुझे अब ये लगता है कि इतना करके भी मुझे ये क्यों बीमारी हुई, ऐसा मन में आता है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है। सो मैंने पूछा उनको कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन किया कि क्या लगता है आपको, कैसी थी आपकी लाइफ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब इतनी सहज नहीं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते जाते रहे। तो ऐसा ये सब उनकी हिस्ट्री है। ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसका साइकोडायनामिक्स जान लेते हैं, और उसके बाद में हम केस का एनालिसिस करेंगे। ठीक है। सो बोन्स एंड जॉइंट्स जो भी है, जैसे जीएनएम में बताया गया है, तो बोन्स एंड जॉइंट्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो होता है सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट। मतलब खुद को ही कम समझना, खुद का ही डिवैल्यूएशन करना। ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, सीवियर डिवैल्यूएशन, सीवियर सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा रहता है। और उसके साथ में स्किन का अगर जोड़ा जाए, तो वो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट बोला गया है। सो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट उसमें रहते हैं। ठीक है। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। एक और चीज है, जनरलाइज्ड
सेल्फ डिवेल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जनरलाइज्ड होता है, किसी पर्टिकुलर जॉइंट के लिए नहीं बोला है, जनरलाइज्ड बॉडी के लिए। तो उसका जो कंसर्न है होल पर्सन के लिए हम ले सकते हैं। So the conflict is experienced, for example, through humiliation, accusations, scoldings, derogatory remarks, abuse, physical, sexual, verbal, failure at work, at school, in sports, in a relationship as a partner or a parent or partner, a poor performance, intellectual, artistic, or athletic, or feelings of shame and guilt, the loss of a status, the loss of a workplace, retirement, illness, or injuries. Okay, I am out of commission, aging, I am not as good as I used to, I am getting old and useless, or the loss of a person who made one feel appreciated and needed, are other conflict scenarios. The way we perceive ourselves or speak to ourselves, I'm a failure, I will never succeed, create mental predispositions of generalized self uh, devaluation conflicts. Okay, so this is the conflict connected to this arthritis, because it is a autoimmune disease. So we have to be very careful, क्योंकि हम इसको पूरा क्योर नहीं कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं डिसीज को, जो भी डिफॉर्मिटीज है वो बढ़े ना, वही अपना रोल है। क्योंकि हमको ये समझना चाहिए हर केस में कि हमको क्या करना है, क्योर क्या करना है। ठीक है, सो दिस इज द केस, लेट अस डिस्कस द केस, और फिर हम सर से भी इंसाइट्स लेंगे रेमेडी के बारे में। एनीवन? हेलो, केस समझ में आया सबको? हाँ मैम। मैम वो हाई स्पिरिटेड लगी कि होम्योपैथी से ठीक हो ही जाएगा ऐसे इसमें। ओके। और पेनकुलर पेनकुलर बोल रही थी तो वो एफेक्टेशन। हम्म। ओके, अफेक्टेशन ले सकते हैं। तो क्या आ रहा है ये दोनों जोड़ के? मैम कर ही रही हूँ। देखते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन दिख रही है? हेलो? हाँ मैम, Yes, हाँ ma'am. मैम। ओके, क्या बताया तुमने? अफेक्टेशन। हाँ, और हाई स्पिरिटेड। हायोस वेरट कार्सिनोसिस। बोलो, क्या लग रहा है? पूरा जोड़ दो ना केस को। मैम इसमें एंजाइटी डार्क भी है। ओके। वो बोलती है कि मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन थी और अभी मैं कैसे, मुझे बोन का डिसीज कैसे हो गया मुझे। ओके, तो एंजाइटी डार्क कैसे?
तो उसको समझ मतलब डाउट्स तो है कि मुझे अच्छा कैसे हो उसको, सकता है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसकी मतलब दो साइड लग रहा है, मुझे जैसे लग रहा है कि ये एक्सक्लूसिव भी है और ये भी है कि मतलब मैं तो इतनी अच्छी थी और अभी मैं बीमार कैसे पड़ सकती हूँ। अच्छा, एक्सक्लूसिव, लेकिन एक्सक्लूसिव टू है क्या? नहीं टू तो नहीं लगी। रूब्रिक क्या है, एक्सक्लूसिव टू वो है बोल ना? रहे हैं हाँ। हाँ रूब्रिक एक्सक्लूसिव टू है। टू है तो ये है क्या? टू लग रहा है आपको, बहुत ज्यादा लग रहा है? नहीं लग रहा है। Okay. टू टू। ये लेमैन की सोच हो गई ना कि मैं तो स्पोर्ट्स खेलती थी, फिर मुझे इतनी ऐसी बोन्स की बीमारी क्यों हो गई। हम्म कॉमन है ना। हम्म। एक्सक्लूसिव क्यों लिया आपने? नहीं वो फील। अच्छा, वो अच्छी थी और अभी ऐसा हो गया। हाँ ये थीनिंग वाला क्यों नहीं है आपको लगा? डिल्यूजन, थीन गेटिंग। सोचती हूँ उसमें। फॉस्फोरस हो सकता है। हाँ थोड़ा सा वैसे फील आ रहा था कि ये फॉस्फोरस है या फिर, पर वो हार्डशिप वगैरह ऐसे देखे कि लाइफ उतनी भी आसान नहीं थी, थोड़ा सा काम तो करना ही मतलब हार्डशिप हम्म है लाइफ में। हम्म। और उसने मतलब हस्बैंड को भी हेल्प किया अच्छे से, काम मतलब काम संभाला है, फैमिली को सपोर्ट किया है अच्छे से। हम्म। ओके। मैम कॉशियसली फॉस्फोरस लग रहा है लग रही है। क्या? कॉशियसली लग रही है क्योंकि जो एक्सरसाइज सब बोला वो भी कर रही है। कॉशियस, अच्छा। ओके। कॉशियस कब लेते हैं हम? कॉशन कब लेते हैं हम? कोई खतरा आने वाला। कॉशन कहाँ पे साइन आप देखते हो? रोड पे। सिंपल, कहाँ पे, उसको मतलब रोड पे कहाँ देखते हो? प्री कॉशन रहता है ना, है ना? मतलब आगे मत जाओ, कॉशन लो कि आप वहां से वो रास्ते से मत जाओ, ऐसा रहता है ना साइन, वो जो कॉशन का रहता है, हाँ। मतलब होने के पहले, है ना? डिसीज होने के पहले आप कॉशन कर रहे हो, तो उसको वो कॉशियस हम सोच सकते हैं। ओके। ठीक है। इसमें केयर ले सकते हैं आप, मतलब केयरफुल, आप जो बोल रहे हो ना कि कॉशन कर रहे हैं, ये हाँ केयर हाँ। कर रहे हैं खुद की, कह करिए सही बात। केयर कर रहे हैं ना। आप कन्विंस हो गए तो यस बोलो, नहीं तो मत बोलो। हाँ मैं हो गई। नहीं, ऐसे मैं बोल रही हूँ इसलिए मत बोलो, अगर आपको लगा है ठीक तो बोलो। ओके, और कोई? ये बंद कर देती हूँ मैं। और कोई? उनको अबॉर्शन हुआ उसके बाद से लग रहा है कि ये सब स्टार्ट हुआ, या तब से उनको कुछ एक अजीब फीलिंग था। तो वो हम्म इलनेस फ्रॉम डेथ ऑफ लव वंस ले सकते हैं। डेथ ऑफ क्यों लव्ड वंस वैसे ले सकते हैं। यहाँ तो डिल्यूजन इंजरीज बीइंग इंजर्ड आ जाएगा ना मैम, कि इंक्लूड है आफ्टर ना। एबॉर्शन हो गया है। अच्छा, इंजुरी बीइंग इंजर्ड ले रहे, लेकिन इंजुरी बहुत छोटा हो जाएगा ना। छोटा इंजुरी तो कैसे होती मैम? है, लेकिन छोटा इन द सेंस, इंजुरी कैसे होती है, एकदम छोटी चीज होती है ना। डिसीज कितना है, डिसीज बहुत मतलब क्रॉनिक डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज हो गया है। हाँ तो उसके हिसाब से ये इंजुरी मतलब इतना डीप लेवल का नहीं होगा वो। पर उसकी फीलिंग है ना कि उसके बाद से मुझे एलिमेंट स्टार्ट हो गए, मतलब शुरू हो गया आफ्टर एबॉर्शन, कुछ ना कुछ शुरू हो गया, मतलब बॉडी में कुछ चेंजेस दिखने लगे, ऐसा बोले ना वो।
वो तो ऐसे तो नहीं बोले कि हम्म उसके बाद ही ये डिसीज शुरू हो गया, वो बोले कि बॉडी में मुझे थोड़ा थोड़ा चेंजेस शुरू हो गए। तो उसको ऐसा लग रहा था कि शायद उसके बाद शुरू हो गया है ऐसे। हाँ, पर मतलब वहां पे वो हमने छोड़ो, तो। वो बात छोड़ो आप, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा हम्म। फोकस दूसरी चीजों पे किया जा सकता है। एक तो अच्छी ये हाई स्पिरिटेड वाली बात अच्छी बोली, लेकिन उसमें और भी एक रुब्रिक है जो इजी वाला है, वो हम ले पॉजिटिव सकते। ने क्या होपफुल ले सकते क्या मैम यहाँ पे? होपफुल भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। मैंने पॉजिटिव लिया था। पर वैसे तो वो मुझे फॉस्फोरस ही लग रही है मैम अच्छा, ठीक है। अब कि आपकी गाड़ी पॉजिटिव फास्फोरस है। में अटक गई है। हाँ। ओके। क्या और क्या फास्फोरस का लग रहा है आपको? वही पॉजिटिवनेस है। मतलब ऐसे इन जनरल भी देखे तो उसका नेचर मतलब वर्किंग हार्ड वर्किंग रहा है। हम्म। ठीक। ठीक है, फास्फोरस और इसका संगू का क्या? और एंजाइटी डार्क वगैरह ऐसे कार्सिनोसिन। करती थी। एंजाइटी डार्क है, ओके। ठीक है, संगीता तुमने क्या सोचा? कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन, ओके। और क्यों कार्सिनोसिन लगा तुमको? मैंने और भी रूब्रिक्स लिए जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। नहीं, कोई तो बात नहीं, हाँ, एक्सप्लेन नहीं तो करना है। उसके बेसिस पे कार्सिनोसिन ही आ रहा है मेरे वर्कआउट में। अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ इससे अलग कुछ लग रहा है? फास्फोरस और कार्सिनोसिन से अलग कोई कुछ लग रहा है? मैडम गुड आफ्टरनून। यस सर। मुझे एक्चुअली सीपीए जैसे लग रहा है। फर्स्ट, सीपी। केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स। ओके। इसके बाद में डिल्यूजन पोर ही इज। ओके। थर्ड वन इज अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशन। ओके, ये क्यों लगा इस आपको? एक्चुअली ये जो काम करता है उसका मन नहीं चाहते, लेकिन इसका जॉइंट पेन है, लेकिन वो सब डोमेस्टिक वर्क करते हैं नहीं, इसलिए। अगेंस्ट विश उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, वो मन से करती है अच्छे से, मतलब हंस के बताया उन्होंने। अच्छा अच्छा। कोई मतलब उनको दबाव नहीं है कि वो उनको करना ही है। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। और पुअर क्यों लगा आपको? पुअर कहीं भी नहीं लगी मुझे। अच्छा, पुअर कैसे लगा आपको? इसका कंडीशन जो है पहले जितना था इतना काम करते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं कर पाए। नहीं नहीं, अभी भी स्पोर्ट्स वो काम कर रही है, लेकिन उनको स्पोर्ट्स क्या लगता है पर्सन कि है। आगे जाके मुझे और काम करना है, क्योंकि उनकी अच्छा अभी बेटी की मतलब शादी होगी। तो अच्छा वो बोले कि उसके लिए मुझे अभी तैयार रहना है, तो तब तक तो मैं ठीक ठाक रहूं, ऐसी उनकी इच्छा थी। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो पुअर वाला तो फील बिल्कुल नहीं आया। उल्टा ये जो हाई स्पिरिटेड बोल रहे हैं, पॉजिटिव बोल रहे हैं, होपफुल बोल रहे हैं, वो मतलब एग्जैक्टली अपोजिट आपका ये लगा। नहीं, हमारा और एक भी। ओके, एक मिनट। मेरा बताइए। एक्चुअली दो दो सेट आ रहा है। और ओके। एक आ रहा है, और एक आ रहा है हाउस उसका जैसे। हम्म एक आ रहा है डिल्यूजन इंजुरी बिंग इंजुर्ड, हम्म। परसिक्यूटेड एंड परस्यूड एंड हम्म। होपफुल। उफ, ओके। क्या आ रहा है? इसके लिए हाउस आ रहा है। अच्छा, ओके। मैम और भी उन्होंने बताया था कि वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, मतलब स्टिचिंग करेंगे, ये करेंगे, ऐसे कुछ ना कुछ है, तो उसपे से इंडस्ट्रियस। हम्म ले सकते हैं। मैम इसमें ये रुब्रिक ले सकते हैं, एक्टिविटी डिजायर एक्टिविटी, या बिजी मस्ट कीप बिजी, कुछ ना ये, कुछ करते रहना है। हाँ, कुछ ना कुछ मतलब बिजनेस, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, ओके। काम में व्यस्त रखते हैं अपने आप को।
और कुछ? डिस्क्लोज करते हैं। हाँ मैम। सो सिंपल रुब्रिक जो है, जैसे सर हमेशा बोलते हैं ना, सिंपल जाना चाहिए। तो एक बात मैंने भी बोली थी कि वो उन्होंने सब करके दिखाया, मतलब एक्सरसाइज भी वो कैसे करती है, ऐसे करती है। फिर पाँव का पेन कैसे होता है, नींद कैसे लगती है, वो सब उन्होंने करके बताया। ठीक है, तो ये क्या है? कम्युनिकेटिव। Indicator. सिंपल, तो कम्युनिकेटिव तो लिया मैंने। दूसरा जो है, क्या बोला था? अफेक्टेशन। अफेक्टेशन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, कोई बात नहीं। ठीक है, अफेक्टेशन ले लेते हैं। ठीक है, और इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब उद्योगी, मतलब कुछ ना कुछ उद्योग, मतलब प्रोडक्टिव। बिजनेस करते रहते हैं। हाँ, तो इंडस्ट्रियस भी मैंने लिया था। और पॉजिटिवनेस। हाई स्पिरिटेड भी ले सकते हैं, क्योंकि इतने मतलब कैसी बीमारी है उनकी, हाई स्पिरिटेड भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सल्फर और कार्सिनोसिन बहुत क्लोज चल रहा था, तो मुझे पहले तो सल्फर ही लगा था, लेकिन ये हाई स्पिरिटेड लिया। और एक जो रुब्रिक है, जो मैंने बोला कि उनकी लाइफ हिस्ट्री जो बताई, कि उनका जो चाइल्डहुड है वो अच्छा नहीं गया। ठीक है, मतलब उन्होंने बोला कि ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ में, है ना, मतलब कि गलत हुआ। तो चाइल्डहुड उनका बहुत अच्छा नहीं गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं रुब्रिक? Wrong suffer. रॉन्ग सफर्ड इन चिल्ड्रन, क्योंकि ये चाइल्डहुड वाला है, इसीलिए वो इन चिल्ड्रन लेते हैं हम। ठीक है, और क्या है? ठीक है, सो ये सारे रूब्रिक लिए थे, और लास्ट में मैंने उनको पूछा कि आपकी लाइफ कैसे गई, मतलब आप पीछे अगर देखते हो लाइफ के अपने, तो कैसे आप एनालाइज करते हो? तो उन्होंने बोला कि लाइफ मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब बचपन से लेके अभी तक के। अभी ठीक है, अभी सब फैमिली वगैरह सब ठीक है, लेकिन अभी तक बहुत स्ट्रगल हुआ उनको। ठीक है, सो लाइफ स्ट्रगल हैज बीन अ लॉन्ग हार्ड। ये सारे रूब्रिक्स मैंने लिए थे। सो दिस इज कार्सिनोसिन। कॉन्ग्रेचुलेशंस संगीता। Thank you. तो हमेशा ऐसा होता है ना कि माइंड मेथड वाले, मतलब बोलते हैं सब लोग कि आप लोग 2 मिनट के केस लेते हो, उसमें सारी चीजें नहीं लेते हैं। तो ये केस से मुझे ये समझ में आया कि नहीं, पूरा मतलब पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री जो भी है, वो सब कंसिडर हम करते हैं अगर क्रॉनिक डिसीज है तो। ठीक है, और दूसरी बात ये हुआ कि ये केस टेकिंग में मुझे थोड़ी सी बात ये समझ में आई कि जब मैंने उनको पहले कार्सिनोसिन 30 दिया था, तो 30 के बाद उनका 1 महीना बहुत अच्छा गया, मतलब उनके पेन्स सारे खत्म हो गए। स्किन का भी थोड़ा वो ड्राई अप होने लगा, जो भी इन्फेक्शन था वो ड्राई हुआ। लेकिन क्या हुआ ना, सेकेंड मंथ में उनका वो पूरा वापस, मतलब बहुत ज्यादा हो गया, मतलब इतना ज्यादा हो गया कि उनका पैर पूरा स्वेलिंग हो गया, और बहुत ज्यादा वो इचिंग वगैरह होने लगा उनको। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये भी एक केस टेकिंग का ये होता है
कि हम लोग क्या करते हैं, घाई में आके कुछ डोज अलग देना है या फिर रिपीट करना है, ऐसा पैनिक होके हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर तभी मुझे थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस भी चला गया कि क्या करना चाहिए, ये मतलब रिपीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उस टाइम पे भी मैंने सर से बात की कि ऐसे हुआ है तो मैं क्या करूँ। तो सर बोले कुछ मत करो, कुछ नहीं करना है, ऐसे टाइम पे वेट करो। तो फिर मैंने 1 महीना उनको कुछ भी मेडिसिन नहीं दी था, खाली पीएल पे चल रहा था। तो 1 महीने बाद वो वापस आए, फिर बोले कि अभी तो ठीक लग रहा है थोड़ा थोड़ा, जब जैसे पहले मतलब एग्रीवेशन बहुत ज्यादा हुआ था वैसे नहीं है, ठीक है अभी। तो मतलब ये चीजें भी हमको ध्यान में रखनी होती है कि आगे जाके कैसे करना है, क्योंकि रेमेडी तो हम आराम से पहुंच पाते हैं रेमेडी तक, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है, केस मैनेजमेंट जो है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उसके बाद मैंने उनको कुछ भी नहीं रिपीट करा। फिर 3rd मंथ में मैंने उनको, 3rd या 4th मंथ में 6 ही दिया था, क्योंकि ये स्किन का ये था। तो उसके बाद अभी जो है उनका रिसेंट फॉलोअप 1-2 दिन पहले ही आया है। तो उनका स्किन का वो पूरा मतलब उन्होंने बताया कि वो पूरा सूख गया है, अभी कुछ नया इरप्शन भी नहीं आया है। और ठीक है, पेन्स भी तो मतलब कुछ नहीं है उनको, बीच में नी पेन भी हुआ था, लेकिन अभी सब ठीक है। ऐसा उनका फॉलोअप आया था ये रिसेंट वाला। ठीक है, सो दिस वाज द केस। So I will request sir to add some insights into carcinosin. Yes, Mansi, what do you want me to add, beta? You have already spoken sufficient about the case and about carcinosin. So your case shows the typical journey of carcinosin. Yes. What is the take that you want to take from this case, from today's lecture? Those who are attending, the participants, I want to understand कि इसमें ये वुमन क्या चाहती है ना? Our series is what woman wants. So from this case, what exactly is it that she wants? Want is a want, like must. Hello, Kavita. I think Dr. Jayashree had cracked my case. No, last time, no, it was the lag diffluentum. किसने crack किया था पिछली बार? सर मैंने। Preeti Preeti. Jayashree was, yes, yes, Preeti. So you tell me, beta. Now you are in our favorite list, है Preeti? थैंक यू सर। Tell तो me. जैसे इस केस में मैम ने बताया उसका चाइल्डहुड अच्छा नहीं था, बहुत स्ट्रगल वाला था। और अभी उसको जैसे बोन की सारी इश्यूज आए प्लस स्किन का भी इशू आया है। तो बोन का तो मैम ने स्टार्टिंग में ही बताया कि डिवैल्यूएशन से रिलेशन होता है और Hmm. स्किन का सेपरेशन से होता है। तो मतलब इसको कहीं ना कहीं लाइफ में जो वैल्यू मिलनी चाहिए, जो एप्रिसिएशन या एक होता है ना कि आपने इतना कुछ किया, आप इतने इंडस्ट्रियस रहे, इतनी कुछ मेहनत करके आपने किया, बट आपको वो चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, एक Hmm. वैल्यू जो मिलनी चाहिए। तो मुझे लगा इसकी वजह से ही इसको ये डिफॉर्मिटी आई होगी। Hmm. Hmm. तो वो लेकिन इसलिए बोथ का इश्यू जो होता है ना, दैट इज सेल्फ डिवैल्यूएशन। हाँ, मतलब मतलब ये कभी नहीं उसको ये करनी लग चाहिए। रहा होगा ना मैंने इतना कुछ किया सबके लिए, फिर भी नहीं मेरे को नहीं फैमिली में नहीं मिला, तो उसको खुद को नहीं अच्छा फील नहीं हो रहा नहीं होगा। नहीं 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 प्रीति, देखो बेसिकली क्या होता है ना, अभी रेमेडीज लाइक फॉस्फोरस, बेलाडोना, हम्म स्वामिका, हम्म इवन डल्कामारा फॉर दैट मैटर, ये लोग हम्म क्या होता है ना, ये अपने आप को पैम्पर करते हैं। हाइड्रोजन भी अपने आप को पैम्पर करता है ज्यादा, नाइट्रिक एसिड भी अपने आप को पैम्पर करते हैं, प्लम्बम मेट, ये खुद को पैम्पर करने वाले लोग हैं। समझ रहे हो? कार्सिनोसिन इज नॉट दैट टाइप। हम्म। समझ रहे हो? वो तो तो एक्चुअली इसको प्लीजिंग में ही रहता है। एक्सटर्नल कार्सिनोसिन की जो नीड है ना बेटा, वो हम्म बहुत छोटी है।
हम्म कार्सिनोसिन को थोड़ा अप्रिसिएशन कर दो, कार्सिनोसिन काम पे लग जाता है, क्योंकि हम्म कार्सिनोसिन बोल रहा है कि मैं मार्टियर बनने को तैयार हूँ। क्या हम्म रूब्रिक कार्सिनोसिन का? डिलीजन मार्टिर। मार्टी मीन्स दैट टू डिलीजन मार्टियर नहीं है। क्या रूब्रिक है मानसी? मार्टी ये शीज करके है। मार्टियर मार्टिर बीइंग। एक ना, लेट मी चेक। डिलीजन मार्टियर बीइंग अ मार्टियर, प्लीज रिमेंबर रूब्रिक हम्म क्या है? डिलीजन मार्टियर बीइंग अ मार्टियर। मतलब हम्म क्या है कि ये पहले से शुरू से आखिर तक ये क्या है? बलिदान करता है। मार्टी ही होती जा रही है, ये हाँ। अपने आप का बलिदान कर रहा है। कि हम्म वो है ना, एक शेर में लिखा था कि तुम्हारे साथ मेरे हर रिश्ते के साथ मेरा एक हिस्सा जाता रहा। आप समझ रहे हो? मतलब हम्म इसका एक 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 पार्ट इसका छूटता जाता है हर किसी के साथ। दैट इज हम्म मार्टियर। वो एक देता रहता है ना, अपने आप से देता है वो करना था ना, कर्ण, महाभारत के जो yes, कर्ण ने अपने आप को कुर्बान किया ना, ही गेव हिमसेल्फ ना, उसका खुद का प्रोटेक्शन दे दिया ना उसने। हम्म वो दैट फीलिंग इज ऑफ, आई डोंट नो कर्ण इज मार्टियर, मतलब कार्सिनोसिन है या नहीं, पर वो जो चीज आप अपने आप को कुर्बान करते चलते हैं, वो मार्टियर वाला होगा। इसको क्या चाहिए ना, ये सब आप में कब आता है पता है? ये सब चीजें जो है ना कार्सिनोसिन में। और एक रूब्रिक है, डिल्यूजन शी हैज नो प्रोटेक्शन। एक रूब्रिक बहुत प्यारा है, आप देखो। हम्म डिल्यूजन प्रोटेक्शन हैज नो प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हैज नो डिफेंस। डिल्यूजन प्रोटेक्शन, डिफेंस हैज नो प्रोटेक्शन, है ना, हैज नो डिफेंस। हम्म इसका मतलब क्या है? कार्सिनोसिन में क्या लैक करता है? डिफेंस लैक करता है। सबसे पहले आपको डिफेंड कौन करता है? एक लड़की को, एक एक औरत को डिफेंड कौन करता है? हेलो, बोलो, कौन डिफेंड करता है आपको? हु इज योर डिफेंस इन द चाइल्डहुड? फादर। 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 एलिमेंट्स फ्रॉम फादर एब्सेंस ऑफ। ओके। समझ रहे हो? तो कार्सिनोसिन को चाहिए होता है बाप, पिता चाहिए होता है। कार्सिनोसिन वो रेमेडी है, ठीक है। कार्सिनोसिन को ऐसा है ना कि कोई ऐसा हो, पिताजी आपको हक से सब कराते हैं ना। हेलो, यस सर। पिताजी हक से कराते हैं कि ये ले, ये कर। मतलब क्या होता है ना कि जैसे आप बोलते हो कि बेटा एक्सरसाइज नहीं करता है, पिताजी बोलते हैं एक्सरसाइज, चल बेटा उठ एक्सरसाइज कर। फादर हैज टू लीड, फादर हैज टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द फैमिली, राइट? हम्म सो व्हाट द फादर डज कि चल उठ कर, मेरे साथ चल, वो तो आइडियल हो जाएगा। दैट बी वेरी आइडियल फादर, लाइक, है ना, कॉस्टिकम टाइप की, बाबा चल मेरे साथ, है ना। या फिर हम्म कोई नेटवर्क का स्टाफ, वो जो डिग्निफाइड टाइप ऑफ जो लोग, वो कि आई एम गोइंग टू सेट एन एग्जांपल। एम्बिशन फॉर फेम भी होता है ना इनमें। तो ये सेट करते एग्जांपल। एम्बिशन फॉर फेम में कौन कौन है देख लो। वो जो एग्जांपल सेट करने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या होता है? आपने कभी सोचा कि देखो, ये लोग एल्यूमिना, ऑरम सल्फ, कोनियम, ग्रेफाइटिस, लैकेसिस, नक्स एंड स्टेफिस आइडिया, ये 7 लोग जो है ना, ये एग्जांपल सेट करना चाहते हैं, है ना। इनको फेम चाहिए ना किसी भी तरीके से। तो ये सेट एग्जाम्पल एग्जाम्पल सेट करके बच्चों को संभालने वाले ये पिता हो गए, या बीवी हो गई, या जो भी हो गया, ठीक है, जो खुद भी फिट रहेगी। उसके अंदर केयरिंग अगर आ जाए कि चलो मैं चल रही हूँ आपके साथ, चलो चलो चलो, वो फिर उसको पुश कर करके चलाने वाला वो पिता होता है। तो ये वैल्यू उसके अंदर पहले से डालने वाला कौन होता है? पिता होता है। सो अ कार्सिनोसिन always will want a father in her husband,
or a carcinosin will search for a mother in the wife, wherein she has to be strong, caring, and उसको जबरदस्ती कराए। कार्सिनोसिन का ये होता है कि कोई हक से जताए, तो वो एक जॉन एली का एक शेर था, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि कोई, मैं तो सबसे बिगड़ा लड़का हूं पर मुझे किसी ने रोका नहीं, ऐसा ही होता है आपके खानदान में क्या? बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। आप जॉन एलिया को सुनिए, तो मतलब जॉन एलिया बोलते हैं कि मैं बिगड़ गया हूं और मेरी खानदान में मुझे कोई रोकता नहीं। समझ रहे हो? तो कोई टोकने वाला चाहिए ना, आप जब गलत हो रहे हो तो आपको टोकने वाला आपका पिता होता है। आप सही चल रहे हो तो आपको शाबाशी देने वाला पिता होता है। फिर वही रोल पति का हो जाता है। फिर बुढ़ापे में इंडियन, जैसे अगर वानप्रस्थाश्रम अगर आप लोग देखो, उसके अंदर बेटा उस तरीके का होता है। हम्म जैसे हस्बैंड जब बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि यूजुअली इंडियन सोसाइटीज के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में 10-15 साल का गैप रहा करता था पहले, तो फिर बेटा बहुत जल्दी हो जाया करता था, जो भी है। तो वो फिर उस वो रोल में रहता था और वो फिर माँ से वो करा के देता था। ठीक है, तो ये लैकिंग होता है कार्सिनोसिन के अंदर, फादर। प्लीज रिमेम्बर, अटैच्ड स्ट्रांगली टू अदर्स, ऐसा एक रूब्रिक है देखो, उसके अंदर भी आपको कार्सिनोसिन मिलेगी। फिर एक रूब्रिक है प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज फादर, पेरेंट्स नीचे फादर है। सो फादर प्लेज अ मेजर 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 रोल इन कार्सिनोसिन। अब कैंसर के केसेस जितने भी आपको मिलेंगे ना, बाय एंड लार्ज आपको कैंसर के केसेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस वाला बंदा, जो भी है, वेदर इट इज फाइनेंशियल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट, और ये लैकिंग मिलेगा जितने भी आपको कैंसर के केसेस मिलेगी। आप देख लें, हमारे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र थे, एमएलए है वो, आफ्टर हिज फादर डाइड ही गॉट कैंसर। ठीक है, तो ऑन दैट आई हैड गिवन हिम कार्सिनोसिन 1 mg। माशाल्लाह ही डिड सो वेल। उनको थैलेसीमिया था, ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं, थैलेसीमिया कहते हैं ना? नहीं, ल्यूकेमिया। ल्यूकीमिया, सॉरी, ल्यूकीमिया था, सॉरी, थैलेसीमिया तो बहुत, ल्यूकीमिया था। And he did so well with carcinosin 1 mg. I did not have to go to 10 mg. 1 mg पर ही उनको मैं repetition, and then he took allopathy also. And mashallah, he's totally fine. It's been more than 12 years now. It's totally fine. Totally fine. ठीक है? So that is the thing. So please remember, ये absent father syndrome जो है ना, वो एक चीज, लेकिन ailments from absence of father, ये कार्सिनोसिन में बहुत मैटर करता है। रुको 2 मिनट रुको, ये बहुत मैटर करता है। Okay, that is very very important in carcinology. Okay, so what women want, अपने पिछले 2 इसके अंदर देखा। अब इसके इससे क्या आपको पता चल रहा है? A woman wants a father. That is also one of the major needs of father. And then appreciation, of course, क्योंकि उसमें है ना, रिलीजन क्रिटिसाइज में है कार्सिनोसिन, रिलीजन अप्रिशिएटेड क्या है? Diligent appreciated, she is not. Yes, but that is, of course, that is a want of everybody, appreciation, है ना? But woman also wants appreciation. अपन क्या होता है ना, माँ मम्मी पानी दे, वाइफ बोलते पानी दे, हस्बैंड बोलते पानी दे। You should start thanking for every small thing anybody is doing. Even if you give somebody, अगर आपने किसी को कुछ चीज दी है, for example, even the seller should thank the buyer. Even in the hotel, you are supposed to thank the waiter, even for offering water, even for taking your so-called order. आप प्लीज एक चीज याद रखो, आपकी नौकरानी, आप उसको, हम तो उसको हाउस हेल्प कहते हैं, तो हाउस हेल्प भी आपको घर में अगर से काम करा रही है, आप उसको पैसा दे रहे हो, यू आर नोबडी टू जज हाउ मच यू आर पेइंग। हाउ मच वी पे इज, जो चल रहा है सोसाइटी में उसके हिसाब से पे करते हैं।
बट क्या हम सच में उसको उसका मेहनताना दे रहे हैं क्या? आप प्लीज सोचिए, उसको सच में उतना एवज आप दे रहे हो क्या उसके? इन रिटर्न आर यू रियली पेइंग हर द अमाउंट दैट यू शुड पे? Because you cannot count anybody's service in terms of money. Please remember. So you are supposed to be thankful. And not only say thankful, thank you, you should be thankful. Thankful for thankful for any work. Any work. Okay. You must express, you must start expressing the gratitude. Okay. So woman wants gratitude, woman wants father here in this case, in Karsinos. Anything else? Any questions, guys? No questions? So thank you very much, Dr. Mansi. Mansi, I call Bachchan of PHF. Thank you, Mansi. It's always wonderful to listen to you. Thank you, Sangeeta Pillu, for a wonderful introduction, beta, as always. And by Thank the way, you. I'm practicing in Bharuch, in Gujarat. If you all have cases, you can refer to Dr. Sangeeta Pillai. And Thank you, sir. I want, क्या नाम था? Preeti Jain. Preeti, Yes, sir. ping me on WhatsApp. You have my number. Okay. No, sir, I don't have your number, I think. Okay. 98500. Just a minute, sir. It is there on Google. Nine You just search लिया. Anyways, 98 500 500 80 80 193. 193. Okay, thank you so much, sir. Sangeeta, Okay, sir. you want to give vote of thanks or shall we wind up? Pillu? Sir. I'm giving. Oh my God. Here is my pillow. Thank you so much, sir, for मतलब आप स्टार्ट करते हो ना, वो स्टार्ट तो लेक्चर से होता है बट फिर लाइफ टिप्स भी आ जाते हैं उसमें, तो थैंक यू फॉर दैट. Not everyone is that generous to give life lessons also. Oh. Thank you to Mansi ma'am for such an amazing case. And thank you to all the delegates who are attending. And have a nice evening. And do watch us on YouTube and YouTube. please do subscribe and share the videos, please, guys. Share the videos. Not for our fame. We are already famous, alhamdulillah. But so people come to know about, and you can ask the questions on our YouTube channel too. Please remember, you can ask any damn question. We are not going to make fun of any questions, please. We don't make fun of people. We don't make fun of questions. Please do ask questions and do watch it again, write notes. Even if you ask the questions later, doesn't matter. ये नहीं कि आप अभी सवाल पूछो, कोई नहीं है. आपने 2 महीने के बाद भी देखा और आपको कुछ सवाल आया तो आप वहां पर पूछ सकते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि उसका वीडियो आंसर दे, फिर आके के इमीडिएटली विल आंसर इट. विल मेक अ शॉर्ट वीडियो एंड देन विल आंसर यू, और we will answer you there itself in the chat. Okay, thank you very much. Pranita, you want to say something, beta? हेलो. Yeah. बुक ह्यूमैनोपैथी अभी स्टॉक में है, और बीच में जिन्होंने भी इंक्वायरी किया था और आउट ऑफ स्टॉक था, तो यू कैन कांटेक्ट मी. माय नंबर इज देयर ऑन फ्लायर. एंड ऑल्सो जिसको भी 100 डेज और बाकी कोर्सेज के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो. मैं आपको पर्सनली डिटेल्स दे दूंगी. थैंक यू सो मच. Yes, Dr. Pranita अगर नहीं आए तो लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाए. Thank you, Pari beta. Thank you, Mansi. Thank you, Pillu, and thank you all the. Thank you, Dilip. Also joined the lectures late. I saw. Thank you so much, guys, for being with us. Bye. God bless. Have a fantastic day. Next Thursday, inshallah, we'll be coming again with some new aspect of the want of the woman. We have promised you to explore, try and explore the heart of the woman and give everything possible that we know, okay, about woman's heart and woman's needs and woman's wants. After that, we will be dealing with the children. So be with us. And anybody has some good cases, anybody coming from any place,
solved with any method, even if it is solved with particular symptoms or physical rubrics, you can contact us. You heard my number. Okay, you contact any of me, any of us, any of our PHF team, or you can directly contact us on Telegram group. I am there to give you the stage. We will refine the case, we'll make it presentable, we will extract the more things that are there in the case. We will present the case. हम आपको stage देंगे. I am here. Okay, my life is devoted to homeopathy, guys. I am here. If anybody wants to present any case, कुछ नहीं, एलिम सिपा की भी सर्दी की भी केस रही तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास आइए. ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय.